Good morning class. Welcome back to the physics class beta. Today we are going to start your kinematics chapter. Before that before the revision of curriculum which has been updated to you, the kinematics was basically deal with the two chapters, motion in a straight line and then motion in a plane. But since motion in a straight line is removed from your course, so now we are not going to discuss about motion in a straight line, although you are quite familiar with all those terms, three equation of motions, then what is inertia, what is speed, what is displacement, what is distance, what is velocity, the area of the displacement, time graph gives what, all these are the basic terms you have already we have already discussed in the class 9th onward, 9th or 10th you have already done, so don't panic for that. Class 11th segment will start from the chapter kinematics, and in the kinematics first of all we will learn the vectors and scalars. After then we will go for the motion in two planes, motion in a plane, okay, that means x and axis, y axis and all, so we will discuss it later on. Today we are going to start vectors. Now what is vector? Vector, okay, now vector है क्या, पहले ये जान लेते हैं what is vector होता क्या है, then उसके बाद बेसिक सा लेक्चर होगा आज, very basic lecture in the chapter of dimension analysis. Even before the dimension analysis, when I was giving the explanation regarding the unit, I had written a basic formula, P is equals to NU, yeah, Q is equals to NU, where Q was any physical quantity, and then N was the numerical value of that physical quantity. Remember, the basic formula was that N was the numerical value of that quantity, numerical value, and U was the unit. यही हमने पढ़ा था, that Q is equals to NU. It is the basic equation represented for the measurement of any physical quantity. मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो और यूनिट पता हो तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. वी कैन इजीली गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इफ वी नो द मैग्नीट्यूड and the unit of that physical quantity. But there are these physical quantities are further categorized into different units. These physical units, yeah, these physical quantities are categorized into different categories. One kind of physical quantity is called vector physical quantity, and then another kind of physical quantities are called scalar. Now what is this? Now a vector and a scalar, as we all know, a physical quantity which has a magnitude plus which has a direction is called what? Vector. And a physical quantity which has only magnitude, although it is not the complete definition, but I will complete it later on, but just for now, vector is a magnitude plus direction, means all those quantities which has magnitude plus direction called vector, and all those physical quantities which has magnitude only, they were called what? Scalar. अब क्या है प्रॉब्लम भाई, जैसे क्यों ऐसा कैटेगराइजेशन हो रहा है, जैसे मान लो आप मार्केट में गए और आपसे मैंने कहा भाई 2 पेन ले आइए, तो आपको मैंने कहा क्या लाने के लिए, 2 पेन्स, 2 पेन, ये 2 पेन आप ले आए. 2 क्या हो गई बेटा आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और पेन की अपनी यूनिट होगी या जो भी फिजिकल क्वांटिटी है. मीन्स या आप गए, आप मार्केट में गए, आपने 2 kg टोमेटो लिया, ठीक है. अब आपको मैंने कहा कि 2 किलो भाई टोमेटो अगर लेना है या 2 kg का आपको कोई फ्रूट लेना है, 2 kg का, मान लो इस वक्त मैंगो खूब चल रहा है, 2 kg का आप मैंगो ले आए, तो ये 2 क्या हो गई आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या है, यूनिट यहाँ पर kg है. तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ भाई 2 किलो आप जाके मैंगो ले आओ, तो शायद इस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से जाएंगे, मार्केट जाएंगे, 2 किलो का मैंगो लेके चले आएंगे. तो ये अपने में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक. लेकिन वहीं मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए अपने आप, ये है हज़रतगंज चौराहा आपका, ठीक, ये हज़रतगंज हो गया. ये ऐसे कई सारी क्रॉस रोड्स हज़रतगंज चौराहे पे आपको पता है आ रही हैं.
यहाँ कहीं है आपका स्कूल, आप इधर चारबाग के रोड से जा रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा कि भाई आपका स्कूल, या आप यहाँ पर किसी बंदे के पास पहुँचे और आपने कहा मुझे सेंट फ्रांसिस कॉलेज जाना है, तो उसने अपना दिमाग लगाया होगा, सोचा होगा भाई यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक ½ किलोमीटर, तो 1.5 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस हो गई हज़रतगंज चौराहे से सेंट फ्रांसिस कॉलेज की। अब आपने इनसे पूछा कि मुझे हज़रतगंज चौराहे से भाई सेंट फ्रांसिस कॉलेज जाना, उसने कहा 1.5 किलोमीटर और आप आगे निकल गए। लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि 1.5 किलोमीटर किस डिस्टेंस जाना है। भाई इस डिस्टेंस से 1.5 किलोमीटर इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, वी आर नॉट श्योर। तो क्या आप अपने इस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे जब यही नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है? आपको पता है मैग्नीट्यूड कितना आपको ट्रेवल करना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल करनी, दैट इज 1.5 किलोमीटर, बट यू आर नॉट श्योर कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो आप कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ तक पहुँचने में। यानी कि कई ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं कई सारी, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के इन्फॉर्मेशन से हमारा काम नहीं चलता, हमें उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। इसलिए वेक्टर्स आप पढ़ते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी, जब तक ये दोनों चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी तब तक आप फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट नहीं कर सकते। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड व्हाट? वेक्टर्स। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, मास है 2 kg, 3 kg, 4 kg, डजंट मैटर, डिस्टेंस है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कहीं भी चले जाइए, ये सब क्या होंगी? आपकी स्केलर। सो ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज। अब अगर डिफाइन करना चाहो इसको स्पेसिफिकली अगर डिफाइन करना चाहेंगे आप, तो इसको लिखते कैसे? और देखें भाई, अगर हम स्केलर को डिफाइन करना चाहें बेटा, तो स्केलर को सिंपली हम लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, which has magnitude only, such as mass, distance, speed, ये सब आप पढ़ चुके हैं। स्पीड, ये सब क्या है आपके बेटा? स्केलर क्वांटिटी होते हैं। इसमें डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है, तो डायरेक्शन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अच्छा, वेक्टर्स क्या होते हैं? अब आइए पूरी डेफिनेशन वेक्टर की पढ़ें। वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास अपना मैग्नीट्यूड होता है, which has its own magnitude, plus which is direction, plus there is one more condition that follows laws of vector addition। अब ये क्या है, हम लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वेक्टर एडिशन क्या होता है। कुछ रूल्स होते हैं, जैसे स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए आप सिंपली अलजेब्रिक रूल्स यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास डायरेक्शन तो होता नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। 1 kg, 2 kg, 3 kg, टोटल कितना हो? 5 kg, 3 + 2 + 1 दैट इज 5 kg। बट अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन भी होगी। तो जब आप ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं जिसमें डायरेक्शन भी होती है, तो वहाँ पे आप सिंपल अलजेब्रिक सम नहीं करते, वहाँ पे हम वेक्टर सम करते हैं। वेक्टर सम का मतलब मैग्नीट्यूड भी देखेंगे और उनकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी, तब हमको पता चलेगा कि नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक। और वो एडिशन जो होते हैं उसके लिए कुछ लॉज दिए गए हैं, ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है, और आपका क्वाड्रिलेटरल है, बहुत सारे लॉ हैं, लेटर ऑन वी विल डिस्कस, पॉलीगन लॉ है, वो हम बाद करेंगे, ठीक। बट ये 3 चीज़ें किसी वेक्टर के पास होनी चाहिए। अगर उनके पास मैग्नीट्यूड है, अगर उनके पास डायरेक्शन है, और अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहे हैं, देन ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर, अदरवाइज दे आर नॉट कॉल्ड वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल करंट, बहुत सारे ऐसे करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की बात अगर आप करो तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई? जैसे मान लो यहाँ से एक 1 एम्पियर की करंट आ रही है, यहाँ से एक 2 एम्पियर की करंट आ रही है, और ये जंक्शन पॉइंट है, उसके बाद यहाँ से एक वायर ऐसे जा रहा है, तो इस वायर में रिजल्टेंट करंट कितनी होगी? क्या लिखते हैं आप? 1 + 2 दैट इज 3 एम्पियर करंट। क्या डायरेक्शन वगैरह कुछ ध्यान दिया? कुछ नहीं ध्यान दिया। 1 + 2 = 3, ये सिंपल अलजेब्रिक रूल है। दिस इज अलजेब्रिक सम ऑफ द 2 फिजिकल क्वांटिटीज of the one physical quantity having 1 ampere and 2 ampere, result is 3. This is algebraic sum, not the vector sum. ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वगैरह कुछ फॉलो नहीं करती, तो ऐसी क्वांटिटीज आपकी वेक्टर नहीं होंगी। अब अगर ऑप्शन में दिया गया होती, देखो स्पेशली इलेक्ट्रिक करंट है, ये होती है टेंसर, एक अलग ब्रांच है। जैसे वेक्टर है स्केलर, वैसे टेंसर एक अलग चीज़ होती है। जैसे प्रेशर है, प्रेशर की भी कोई अपनी मैग्नीट्यूड होता है, प्रेशर का डायरेक्शन भी होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? टेंसर। ऐसी क्वांटिटीज को हम टेंसर कहते हैं। बट अगर जैसे मान लो MCQ आपको दिया गया हो, आपसे कहा गया है ये वेक्टर है या स्केलर है या टेंसर है या नन ऑफ द अबव, ऐसा कुछ दिया गया हो, अगर टेंसर ऑप्शन में दिया जाएगा तब आप टेंसर पर टिक करेंगे,
अगर टेंसर नहीं है ऑप्शन में, सिर्फ वेक्टर और स्केलर में पूछा जाएगा, तो आप इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर को क्या मानेंगे, स्केलर मारेंगे, इस बात को याद रखिएगा। इफ टेंसर इज गिवन इन द ऑप्शन देन वी विल गो फॉर द टेंसर for electric current or pressure, and if it is not given in the option, only vector and scalar is given in the option and you have to find out which one is correct, then we will go for the scalar for the electric current. Okay, so basically vectors are those physical quantities which has magnitude, direction and which follow the law of vector addition. Scalar are those physical quantities which has only magnitude. Okay, इलेक्ट्रिक करंट इट इज़ अ वेरी स्पेशल केस। इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज नॉर्मली हमको दिखता है इलेक्ट्रिक करंट की अपनी यूनिट भी होती है, इलेक्ट्रिक करंट की अपनी डायरेक्शन भी होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, उसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट फिर भी ये वेक्टर नहीं होती क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते। ठीक है, दो बातें याद होगी, इतनी बातों को आपको याद रखना है। अब वेक्टर्स को बनाते कैसे भाई, नोटेशन क्या है, ये बात उसकी करें। हाउ विल वी नोटिफाई अ वेक्टर, हाउ विल मेक अ वेक्टर। So basically, as I told you, the vector has only two things for writing process. One is the magnitude and one is the direction. So normally vector is denoted by a line and a arrow. Now the length of this line, let me write it. The length of line gives what? Magnitude of physical quantity. क्या देगा ये, मैग्नीट्यूड। जितनी लंबी लाइन होगी वो क्या देगा, उसका मैग्नीट्यूड देगा। एंड द arrow head gives the direction. Remember this, the length of the arrow, the length of the line gives the magnitude of the physical quantity and this arrow represents the direction of the physical quantity. Suppose that if I says that the force of 4 Newton acted towards east direction, तो कैसे बनाएंगे आप इसको, towards east direction, 4 न्यूटन का फोर्स है। अब आपको पता है फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब अगर आपको फोर्स जो कि 4 न्यूटन का है वो ईस्ट की डायरेक्शन में लग रहा है और आपको इसको रिप्रेजेंट करना है वेक्टर से, तो कैसे करेंगे, हम चुपचाप से एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, अपनी सेंटीमीटर स्केल लिए ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब सेंटीमीटर स्केल में जो यूनिट होती है दैट इज गिवन इन द सेंटीमीटर, बट वी वांट टू फाइंड आउट न्यूटन, तो आर्बिट्रेरी कुछ अपने आप से मानते हैं, जैसे आप एक्स और वाई एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट मानते हैं, कभी डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, कभी वेलोसिटी मानते हैं, कभी एक्सीलरेशन लेते हैं, वैसे हम क्या करते हैं, लेट अस टेक एक्स एक्सिस एज फोर्स एक्सिस। हमने एक्स एक्सिस पर क्या मान लिया, फोर्स मान लिया, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। So how much Newton we want? 4 Newton. So 4. Suppose that this is your 4 centimeter. So length of the wire, length of the vector is magnitude. Length of the line is magnitude. Magnitude is how much here? 4. So it will be 4 centimeter, which is nothing else 4 Newton, and it is directed along the east. So this is the east direction. Let us take. This is the 4 Newton force vector notation. 4 Newton of force towards east, towards west, towards north, towards south, कहीं भी आप बना सकते हैं। तो वेक्टर को बनाते कैसे हैं, सिंपल सा, एक लाइन की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसके आगे एक एरो, वो क्या डिफाइन करेगा, उसकी डायरेक्शन। ठीक, लेटर ऑन इसको थोड़ा सा और शॉर्ट किया गया, कितनी बड़ी फिजिकल क्वांटिटी भाई कैसे हम ड्रॉ करेंगे, तो हमने इसको और नटशेल में लिखा, हम लिखने लगे केवल ऐसा, F इज इक्वल्स टू 3 न्यूटन, ये ऐसे लिखा गया है। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी के जस्ट ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देंगे, ये छोटी सी लेंथ लाइन और उस पर एक एरो। दिस सिंबल रिप्रेजेंट दैट द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये मत कहना कि सर ये ईस्ट जा रहा है इसलिए ऊपर लगा है, वेस्ट जा रहा होगा तो फोर्स को ऐसे बना देंगे, नहीं, वो नोटेशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। अगर इफ इट इज अ वेक्टर देन इट विल ऑलवेज डिनोटेड लाइक दिस, symbol of the physical quantity, a short line over the physical quantity along with a arrow. That is the simple notation of any vector quantity. This is the notation of any vector quantity. Got it? That's it. अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन है, कभी कभी आपको ये ऐसे भी मिलेगा, it is called modulus ऑफ ए, मॉड ऑफ ए जिसको आप कहते हैं, और मॉड मीन सिंपल क्या, मैग्नीट्यूड। यानी अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के
दोनों तरफ एक आप बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देते 2 लाइन, तो वो क्या बन जाएगा उसकी मॉड, यानी मैग्नीट्यूड बताएगा। यानी जैसे मान लो लिखा गया है वेक्टर ए इज 4 न्यूटन, सपोज ऐसे लिखा गया है, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 न्यूटन। डायरेक्शन की बात नहीं करूंगा इसमें। अगर मॉड लगा है तो विल सिंपली डिस्कस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ओके डन। एक चीज, दूसरी चीज, कभी कभी आपको ऐसे भी मिलेगा सिंपल ए लिखा हो और कहा जाएगा ए इज अ वेक्टर, तो अगर सिंपली ए लिख दिया जाएगा अभी भी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, मैग्नीट्यूड को। तो चाहे मॉड लगा दीजिए किसी फिजिकल क्वांटिटी में तो भी वो क्या देगा उसका मैग्नीट्यूड, और चाहे सिंपल आप एफ लिख दीजिए देन ऑल्सो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट अ मैग्नीट्यूड। ओके, तो आई होप माई पॉइंट इज वेरी क्लियर। वेक्टर लिखा कैसे जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी, उसके ऊपर एक एरो, ठीक। कभी कभी उसका मॉड निकाल देंगे, मॉडुलस लगा देंगे, देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी विल डिस्कस ओनली अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। और अगर सिर्फ वो सिंबल लिख दिया गया है, ए लिख दिया गया है, एक्स लिख दिया है, वाई लिख दिया है, या वो फिजिकल क्वांटिटी का सिंपल लिख दिया गया है सिंबल, उसके ऊपर क्वेश्चन लिखा गया है, देन ऑल्सो वी विल कंसिडर इट एज अ vector with a magnitude, only magnitude we will consider in that case. Okay, so this is all about the notation of vector, कैसे represent करते हैं, दिखाते कैसे हैं इसको, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि एंगल वगैरह की, कैसे एंगल वगैरह लिया जाता है भाई वेक्टर्स का। चलो देखें, वेक्टर बहुत बड़ा टॉपिक है, बट बहुत अंदर नहीं लेके जाऊंगा, बहुत ऊपर ऊपर से लेके निकलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है आपको इसके, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए अब आप कि वेक्टर्स को कैलकुलेट कैसे, जैसे मान लो कोई 2 लाइन है, उसके बीच में वेक्टर कैसे लेंगे, उसके बीच का एंगल कैसे लेंगे और, ठीक। सपोज दैट मान लो आपके पास एक वेक्टर है ऐसा, दिस इज योर वेक्टर ए, और एक वेक्टर है ऐसा, दिस इज योर वेक्टर बी, ठीक है। अब इनके बीच का आपको एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल के लिए हमेशा याद रखिए कि चाहे जैसा भी वेक्टर में बना लो बेटा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लो भाई, एक चीज़ भूल गया बताना, दिस इज कॉल्ड टेल ऑफ वेक्टर, लास्ट पॉइंट या इनिशियल पॉइंट जिसको कहते हैं टेल ऑफ वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ वेक्टर। ओके, टेल ऑफ वेक्टर एंड हेड ऑफ वेक्टर। अब जो आपके एंगल्स वगैरह लिए जाते हैं, ये डायरेक्शन लिखा गया, जैसे मान लो आपसे कहा गया कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन कैसे होती है एक बार बता दो, क्योंकि इस पूरे साल आपको मुझे पढ़ाना है, तो वो बार बार कन्फ्यूजन आपको क्रिएट करता रहता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड टेल, दिस इज कॉल्ड द हेड ऑफ द वेक्टर। तो सपोज दैट ये ऐसा बना हुआ है। अब आपको ये पता है बेटा, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, this one is the south. Now if I directly give like this is a vector A. Now what is the value of the vector and what is the direction of the vector A? How will we find out? We will simply take a meter scale, centimeter scale, we will put over here and just count. It is 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter and 4 centimeter. Let us take, it is a force, let us take it, A is a force. So what we assume, F is equals to 1 centimeter, which is considered to be 1 Newton. So 1, 2, 3, 4, the magnitude of force is what? How much? 4 Newton. ये मेजर हो गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या हो गया, हमें दिख रहा है ईस्ट है, यानी 4 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ऐसे ही कुछ कॉमन नोटेशन मैं आपको बना दे रहा हूँ। जैसे मान लो ऐसा कोई वेक्टर बना दिया, उसी फोर्स को ऐसे लिख दिया मैंने। ये डायरेक्शन क्या है, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो इफ इट इज 45 डिग्री, तो आप क्या लिखते हैं इसको, व्हाट विल बी दिस डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, आप ये लिखते थे नॉर्थ ईस्ट। रिमेंबर दिस, if this angle is 45 degree means this vector is bisecting these two, then it is called what, northeast। अगर ये ऐसा है और ये एंगल 45 डिग्री है तो क्या कहते हैं इसको बेटा, नॉर्थ वेस्ट। अगेन 45 डिग्री, देन साउथ वेस्ट, 45 डिग्री है, देन साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये नोटेशन होगी, ये आपको अक्सर मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। अब इसको वेस्ट साउथ भी कह सकते हो, बट आदत है नॉर्थ साउथ के टर्म में एक्सप्लेन करने की, इसलिए उसमें कर दिया। आप कुछ भी कह सकते हैं। एक तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट क्या होता है भाई। अच्छा, फिर देखो एक और नोटेशन है, जैसे मान लो जैसे है ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सपोज दैट ये ऐसे मैंने ड्रॉ किया 30 डिग्री। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर? ए, कोई वेक्टर ए है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस ए? सो इट विल बी रिटन लाइक एज व्हाट, यहाँ से चले हो, यहाँ से कितने डिग्री गए? 30 डिग्री। किस तरफ? नॉर्थ की तरफ। मीन्स इसको लिखोगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे लिखा जाएगा। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना डिग्री चले बेटा? 30 डिग्री। देखो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ 30 डिग्री चले। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये एंगल कितना होगा बताओ? 60 डिग्री होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना चलोगे? 60 डिग्री, तब ये वाली वेक्टर पा जाओगे आप। या ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना चलोगे? 30 डिग्री, तब भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऐसे ही मान लो ये इधर बना दिया हो मैंने, और ये एंगल दिया गया है, मान लो 45 तो हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। मान लो 15 डिग्री दिया मैंने, तो इसका क्या लिखोगे? दो तरीके से लिख सकते हैं इसको आप। इसको आप लिख सकते हो 15 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ ना, साउथ से ईस्ट की तरफ कितना चले हो? 15 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। जैसे ये हुआ था 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वैसे 15 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये टोटल 90 डिग्री होगा। अगर ये 15 है तो कितना हो जाएगा? 75, 75 और 15 90, 75 हो गया। इसको कैसे लिख सकते हो? 75 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये भी लिख सकते हो आप। तो ये डायरेक्शंस के बेसिक फंडे हैं, इसको याद रखिएगा वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ मैंने लिख दिया, ये मैंने लिखा 25 डिग्री, तो ये कितना बचेगा भाई? 65, 65 प्लस 5 20 प्लस 20 90। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या लिखते हो? दो तरीके लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो 25 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। वेस्ट से किधर चल लो? साउथ की तरफ कितनी डिग्री? 25 डिग्री। 25 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से 25 डिग्री साउथ की तरफ, या 65 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, दोनों लिख सकते हो आप। तो दीज आर द बेसिक नोटेशंस, कैसे नोटेट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर्स को। ठीक है, अब आओ बात करते हैं कि वेक्टर और स्केलर में बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं। एक बार एक चार्ट बनवा दें जिससे आपको याद रहे वो चीज़ें। याद कैसे रखेंगे? अगर कोई आपसे पूछे वेक्टर और स्केलर कैसे पहचानेंगे, तो वेक्टर, स्केलर, बेसिक सी बातें हैं इसमें। इट हैज़ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और क्या होता है इसमें भाई? फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, स्केलर में क्या होगा भाई? ओनली मैग्नीट्यूड, देन कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करते, एक पॉइंट। दूसरा, एडेड बाय वेक्टर लॉज। ठीक है, ये वेक्टर लॉज की मदद से ऐड किए जाते हैं। और इसमें सेकंड पॉइंट क्या है? एडेड बाय सिंपल एल्जेब्रिक रूल्स, एल्जेब्रिक रूल्स। देन मैग्नीट्यूड, ये सब होते हैं सिंपल वेक्टर रूल से ऐड किए जाते हैं, एल्जेब्रिक रूल से ऐड किए जाते हैं। एग्जांपल्स आपको मैंने बहुत सारे बताए थे, डिस्टेंस, स्पीड, मास, ये सारे आपके क्या होते हैं? स्केलर होते हैं। इधर आ जाएंगे आप तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन एंड सो ऑन। ठीक है, ये बेसिक से इसके डिफरेंसेस हैं। ठीक, अब और देखिए भाई कि वेक्टर्स को एडिशन कैसे होता है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है उसको, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी कि एंगल कैसे आप फॉर्म करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ, या फॉर्मेशन के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स। सपोज दैट आपके पास बेटा एक ऐसा वेक्टर है, वेक्टर ए, और एक ऐसा वेक्टर है, वेक्टर बी। देन
ना इसके बीच में देखो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक एंगल ये है, मान लो ये x है, और एक एंगल ये भी बन रहा है, दैट इज टेक y. So which angle we will consider the angle between vector A and vector B? So remember this, theta should be greater than 0 or equal to and less than or equal to 180 डिग्री. इसको अपने दिमाग में बिठा लेना है आपको कि आपको केवल वही एंगल लेना है दो वेक्टर्स के बीच का जो 180 के इक्वल या उससे छोटा हो, या 0 से बड़ा या उसके इक्वल हो. 0 से कम और 180 से ज़्यादा आप एंगल नहीं ले सकते, और लेंगे तो गलत हो जाएगा. और लेना कैसे है, हमेशा आइदर वी ऐड टेल टू टेल और वी मिक्सअप और वी ऐड हेड टू हेड. एक बात तो याद रखना आपको, अभी कैसे मैं बता रहा हूँ. दो वेक्टर्स के बीच में अगर हमको एंगल निकालना है तो हम उन दोनों वेक्टर्स की टेल टू टेल ऐड करेंगे, मतलब टेल टू टेल अटैच करेंगे, ऐड करेंगे, या हेड टू हेड ऐड करेंगे. और उसके बाद क्या देखना है, दैट एंगल विल बी चूजन विच इज लेस देन और इक्वल टू 180 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. जैसे अच्छा एक बात ये पहले देख दो, एक बात ये, दूसरी बात ये है कि टेल टू टेल हेड टू हेड हो गया, उसके बाद आपको एंगल निकालना है. चलो दूसरी चीज़ याद रखनी बेटा कि वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इट. ये दोनों बातें अगर आप याद रखेंगे तो किसी भी तरीके के एंगल वगैरह निकाल सकते हैं. पैरेलल टू इट, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम. यानी कि किसी वेक्टर को आप उस वेक्टर के पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. बट हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर शुड नॉट चेंज. सपोज दैट दिस इज योर वेक्टर ए. नाउ दिस वेक्टर ए कैन बी मूव पैरेलल टू इटसेल्फ एनीवेयर, इधर कहीं भी आप लेके जा सकते हो इसको. दिस वेक्टर ए कैन बी शिफ्ट पैरेलल टू इट एनीवेयर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. बट वी हैव टू कीप इट्स मैग्नीट्यूड, that is length of the vector, and the direction of the arrow that should not change. अगर ऐसा नहीं है, यानी आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आप एक वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं पर भी ले जाके शिफ्ट कर सकते हैं. वेक्टर विल नॉट गोइंग टू बी चेंज. ओके, अब देखो फायदा क्या है भाई इसका. फायदा ये है, सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ये ऐसे है, दो वेक्टर ऐसे हैं. दिस इज वेक्टर P, दिस वन इज द वेक्टर Q, एंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 30 डिग्री. ऐसा डायग्राम बना दिया गया था, वेक्टर P, वेक्टर Q, दिस एंगल इज 30 डिग्री. पूछा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q. अब देखने से लग रहा है वेक्टर P वेक्टर Q के बीच में एंगल 30 डिग्री दिख रहा है, आप लिख देंगे 30 डिग्री, बट द आंसर विल बी इनकरेक्ट. मैंने आपको क्या कहा, वेक्टर्स के बीच का जब भी आप एंगल देखेंगे हमेशा वी विल ऐड आइदर टेल टू टेल और हेड टू हेड. दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर P एंड दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर Q. यानी यहाँ क्या मिल रहा है जिसके बीच में 30 डिग्री एंगल बना है, टेल एंड हेड. सही तरीका क्या होगा, आइदर टेल टू टेल और हेड टू हेड. तो क्या करोगे भाई, अब हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को अगर आप ध्यान से देखो, दिस वेक्टर P कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इट एनीवेयर विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन. सो दिस वेक्टर Q कैन बी redrawn like this as it is. Now we will shift this vector parallel to it like this. This is the head of the vector P, this is the head of the vector Q, and it will be like this. देखो वेक्टर Q ये था, इस वेक्टर P को पैरेलल मूव करा के लेके चले आए यहाँ तक, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, डायरेक्शन अभी भी वैसे ही है, लेंथ अभी भी वैसी है. अब ज़रा सोचो, ये जो यहाँ तक लेके आए हो, ये टोटल एंगल कितना बनता, 180 डिग्री.
ये पूरा कितना होगा 180 डिग्री, तो ये कितना होगा सोचो ज़रा, ये एंगल कितना होगा, ये टोटल 180 है, उसमें 30 माइनस कर दो, कितना बचेगा 150 डिग्री विल बी द आंसर एंड इट इज लेस देन 180। मैंने क्या कहा था, थीटा शुड बी लाइक दिस। ये पूरा का पूरा पैरेलल मूव कर गया, टोटल 180 था, तो ये कितना होगा 180 माइनस 30 दैट इज 150 डिग्री। तो एंगल्स निकालना बहुत ज़रूरी है, ध्यान नहीं देंगे तो आप गलत कर जाएंगे, एंगल ही बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप गलत कर जाओगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर उसमें आपको टेल टू टेल हेड टू हेड दिया गया है, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये एंगल 270 है, ये है वेक्टर P, ये है वेक्टर Q और ये एंगल X है, तो पूछा जा रहा है आपसे P और Q के बीच का एंगल कौन सा लेंगे, क्या ये वाला लेंगे आप, ये नहीं ले सकते आप, क्यों, बिकॉज इट इज़ 270 ग्रेटर देन 180, हो ही नहीं सकता है। तो ये टोटल एंगल कितना होगा बताओ, टोटल एंगल विल बी 360, उसमें से ये माइनस कर दो, 270 माइनस करो, 0 16 7 3 10 और 9, 7 3 10 और 6 3 9 और 3 में से 2 गए 90, यानी ये एंगल कितना बचेगा 90 डिग्री बचेगा, विच इज़ लेस देन 180। तो एंगल निकालना बहुत ज़रूरी है। कैसे निकालेंगे, टेल टू टेल मिलाएंगे और हेड टू हेड अटैच करेंगे, और जैसे टेल टू टेल हेड टू हेड मिलेगा हम वो एंगल चूज करेंगे जो एंगल 180 से छोटा या उसके बराबर होगा और 0 या उससे बड़ा होगा। दैट इज द हाउ वी इवेलुएट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं, ऐसे आपको बहुत सारा बना दिया जाएगा, ये बहुत सारे ऐसे बना दिए जाएंगे, पूछा जाएगा एंगल बताइए और सब एंगल आपको दिया रहेगा अलग अलग टर्म्स में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर्स को उसके पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा। इस वेक्टर को यहाँ ऐसा कुछ शिफ्ट करो, जैसे मान लो ये एक कॉमन पॉइंट बना लो इंटरसेक्शन का, दिस इज द कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। इस वेक्टर को यहाँ तक मूव करा के लाओ पैरेलल, ये ऐसा, इस वेक्टर को इसके पैरेलल शिफ्ट करके कुछ ऐसा कर दिया, इस वेक्टर को इसके पैरेलल शिफ्ट करके कुछ ऐसा कर दिया, इस वेक्टर को इसके पैरेलल शिफ्ट करके कुछ ऐसा कर दिया गया। और बाकी सब देखो, ये सवाल ऐसे दिया जाएगा, ये एंगल आपको बताया जाएगा 90 डिग्री, फिर ये बता दिया जाएगा इस तरह से, फिर ये इस पॉइंट से बता देगा 30 डिग्री, कुछ भी दिया जाएगा। तो आप वेक्टर्स को जब पैरेलल शिफ्ट करेंगे कुछ इस तरह डायग्राम बनेगा। नाउ वी विल इजीली गिव द आंसर, इसके बीच में 90 डिग्री बनेगा, इसके बीच में ये, इसके बीच में ये, आराम बता सकते हैं आप। ठीक है, तो वेक्टर्स हमेशा अपने पैरेलल शिफ्ट किए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वेक्टर्स को जब भी हम अटैच करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो हम टेल टू टेल और हेड टू हेड अटैच करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एंगल उसके बीच का निकाल पाएंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। बहुत डेप्थ में नहीं लेके चलूंगा, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, वी विल डिस्कस नाउ टाइप्स ऑफ वेक्टर। सो बेसिकली बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। जैसे पहला मैं आपसे बात करूं टाइप्स ऑफ वेक्टर में, टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो सबसे पहले तो इक्वल वेक्टर जान लेते हैं। इक्वल वेक्टर, equal vectors. Now as you see, equal vector means equal in magnitude, equal in magnitude, plus second thing, the direction should be same, direction should be same, plus they have to be of the same physical quantity, same, yeah, you can say same unit. Okay, if there are two vectors of same magnitude acted along the same direction and have the same unit, then these two vectors are called what? Equal vector. Suppose that if I says vector A is 3 Newton, vector and it is towards east, vector B is again 3 Newton, it is again towards east, and vector C is 4 meter per second towards east. So out of these three, these two are the equal vectors. Why? Because they have the same magnitude, same directions and same unit. This is also a force, this is also a force. Now if I take it like this, let me make it more precise. Now A, B, C, you can see 3 Newton, 3 Newton, 3 meter per second, that is the magnitude is same. East, that is the direction is same. So we commonly says what? A, B, C are what? Equal vector, but it is not right. This is not a force,
it has a different unit. It has a unit of velocity or speed, that it is a vector, so it is a unit of velocity 3 meters per second. So for a vector, so for two vectors to be equality, the direction, the magnitude and the unit, all these three should be same, then only we can say that these vectors are equal vector. If they have same magnitude, if they have same direction but they have different units, then we can't say that this is a vector of equal. They are not called equal vector. Okay, so remember this, equal in magnitude, direction should be same and same unit, then only we say that these vectors are called equal vector. Next one is the opposite vector, or sometimes it is also called negative vector. What does it mean? Equal in magnitude, the very first requirement, equal in magnitude but opposite in direction. Equal in magnitude, opposite in direction. See, force F1 is 3 Newton towards waist, and force F2 is again 3 Newton. See, the magnitude is same, 3 Newton, and it is acting along east, west, east. These two vectors are called what? Opposite vector or negative vector, or simply say that vector F1 is negative vector of F2, yeah, we can say F2 is negative vector of F1. Why? Because the magnitude is same but direction is totally opposite, completely opposite to each other. Okay. Then after opposite vector we have parallel vector. What is parallel vector? If the angle between two vectors are 0 degree, then we can say that these two vectors are parallel vector. If the angle between the two vectors are 180 degree, then we say that it is anti-parallel vector. If the angle is 0, then parallel vector. If the angle between two vectors is 180 degree, then it is called anti-parallel vector. Collinear vector means if the vector acted along the same line. If the vector P and vector Q, both of the vectors are acted along the same line, then we say that these two vectors are what? Co-linear vector. Okay. Coplanar vector, if the vector exists in a common plane, and remember two vectors are always coplanar. दो वेक्टर्स हमेशा क्या होंगे? कोप्लानर वेक्टर ही होंगे. सपोज दैट दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और इस एक्स वाई एक्सिस में कोई भी दो वेक्टर ले लो. ये ऐसे है, अगर मैं इसके पीछे एक ऐसे कॉपी लगा दूं तो ये दोनों वेक्टर इसी कॉपी में ही तो आ रहे हैं. ये क्या है? सेम प्लेन में, इसी प्लेन में ये भी है और ये भी है. किसी भी दो प्लेन में रख दूँ, ऐसे रख दूँ तो वेक्टर्स किसी दूसरे प्लेन में कोप्लानर होंगे, लेकिन होंगे कोप्लानर. देखो ऐसे रख दिया है, नीचे वाले कॉपी इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गए? कोप्लानर हो गए. अगर मैं इसको ऐसे उठा दूं, अच्छा भाई, ये ऐसे रख दूं तो इस प्लेन के लिए हो गया. अगर ये ऐसे रख दूं तो इस वाली प्लेन के लिए हो गया. यानी कि दो वेक्टर्स हमेशा क्या होंगे? कोप्लानर होंगे. यानी कि इफ द वेक्टर्स रिमेन्स इन द सेम प्लेन, इफ द टू वेक्टर्स रिमेन इन द सेम प्लेन, देन दे आर कॉल्ड व्हाट? कोप्लानर. थ्री वेक्टर्स अगर हो, थ्री वेक्टर्स बेटा कोप्लानर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे लिया और एक वेक्टर और ऐसे ले लिया ऐसे, तो नीचे वाले प्लेन के लिए कैसा है? कोप्लानर है. ठीक. अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो इस पीछे वाले प्लेन के लिए कैसे है? कोप्लानर है. अब अगर इसको मैं कुछ ऐसा कर देता हूं, ये तो इस केस में दो वेक्टर्स तो कोप्लानर होंगे. ये दोनों कोप्लानर हैं, ये दोनों भी कोप्लानर हैं और ये दोनों भी कोप्लानर, लेकिन तीन के तीनों कोप्लानर नहीं हो, क्योंकि तीन के तीनों किसी एक प्लेन में नहीं. देखो अगर इन दोनों को कवर करना चाहोगे तो ये वाली छूट जा रहा है, ये कोप्लानर नहीं होगा. अगर इन दोनों को कवर करोगे किसी एक प्लेन में तो ऊपर वाला छूट जाएगा. अगर आप इन दोनों को कवर करोगे तो इधर वाला छूट जाएगा. यानी तीन वेक्टर्स ऐसी सिचुएशन में कोप्लानर होंगे. ऐसा नहीं कि कोप्लानर होंगे ही नहीं. ये देखो जा, ये अगर मैं नीचे कॉपी रख दूं, ये एक प्लेन है, नीचे रख दूं, देखो तीन के तीनों इसी प्लेन में आ जाएंगे. लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा कोप्लानर ही होंगे. ठीक है. तो दो वेक्टर्स कोप्लानर हो भी दो वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लानर होंगे. तीन वेक्टर्स कोप्लानर हो भी सकते हैं और कोप्लानर नहीं भी हो सकते. ठीक. तो कोप्लानर हो गया भाई.
इक्वल वेक्टर आपको मैंने बता ही दिया जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन भी क्या हो, बिल्कुल सेम हो। अच्छा, इसमें एक और आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको जिक्र आपको पूरे साल फिजिक्स में करना है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर। नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर? एज द नेम सजेस्ट्स, a vector having magnitude 1, vector with unity magnitude, with unity magnitude. This vector is called what? Unit vector, and it has direction of specific direction. अभी ऐसा लिखो बस, it has a specific direction. स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप ले रहे हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन हमेशा कौन रिप्रेजेंट करेगा? उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर हो, द यूनिट वेक्टर ऑलवेज डिनोट्स द, ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। इसको याद रखना बेटा, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड यूनिटी एंड इट ऑलवेज इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यूनिट वेक्टर्स को अलग से नाम दे दिया गया, अलग से डिफाइन किया गया, अलग से इसकी वैल्यू है। जैसे इफ देयर इज एनी वेक्टर विच इज एक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, इफ देयर इज एनी वेक्टर विच इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, सो दैट वेक्टर हैज ऑलवेज यूनिट वेक्टर आई एंड कैप। Over here see, if I am writing it, A is a unit vector, then I have to write this A and I will make a cap on it or hat on it. It is pronunciated as A cap or A hat, कोई भी आप पढ़ सकते हो। This is a unit vector A cap और A hat। इसको देखो कितनी इज्जत दी जा रही है, कितनी इज्जत बख्शी गई कि इसके ऊपर एक टोपी पहनाई गई इसको। हालांकि टोपी पहनाने का मतलब कुछ और भी होता है, बट फिलहाल यहाँ इज्जत दी गई इसको, ठीक है। ए कैप दैट इज यूनिट वेक्टर ए कैप और ए हैट। मैग्नीट्यूड इसका हमेशा कितना होगा? 1 होगा। और ये क्या देगा? हमेशा किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इतना स्पेसिफिक है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमेशा यूनिट वेक्टर बेटा लिया जाएगा आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर फिक्स कर दिया गया है, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर जे कैप, और z एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर हमेशा लिया जाएगा k कैप। रिमेंबर दिस, i कैप इज द यूनिट वेक्टर एक्टेड अलोंग x एक्सिस, j कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, k कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। ठीक, i, j एंड k, x, y एंड z। इतनी बातों को याद रखेंगे। अभी हमने कोई एडिशन फेडिशन नहीं सीखा है, ठीक है। अभी एडिशन वगैरह नहीं सीखा है। एडिशन सीखने के लिए हमें 2 मेथड उसके सीखनी पड़ेंगे। तो ग्राफ वाला अभी बता दे रहा हूँ। जैसे सिंपल हम जो ऐड करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको 2 वेक्टर्स दिए, मैंने कहा कि आप मुझे इनका रिजल्टेंट बताओ। तो 2 वेक्टर्स के जो एडिशन है ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 वेक्टर्स का एडिशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे स्केलर है 2 kg + 2 kg, अब चाहे तुम 2 kg का एप्पल ले लो, 3 kg का गुआवा ले लो और 5 kg का आप ऑरेंज ले लो। देखो 2 kg एप्पल, 3 kg गुआवा लिया और 5 kg आपने मान लो फिर से मैंगो ले लिया। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नेट कितना kg आपके पास है, तो 5 + 3 8 + 2 दैट इज 10 kg। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गलती नहीं। वेक्टर के साथ ऐसा नहीं होता। वेक्टर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो 2 + 2 4 भी हो सकता है, 2 + 2 देखो लिखी दूं 2 + 2। अगर ये किसी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड है तो ज़रूरी नहीं कि इनका सम हमेशा क्या आएगा? 4 आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं। इनका सम 0 से लेकर 4 के बीच में कुछ भी आ सकता है, ये जान लीजिए आप। रिमेंबर दिस पॉइंट बेटा, इफ देयर आर 2 फिजिकल क्वांटिटीज विच आर वेक्टर एंड इफ दे आर एडेड, then the result will be from the negation of these 2 vector up to the addition of those 2 vector। जैसे मान लो 2 और 2 को ऐड करोगे तो 4 आएगा और 2 और 2 को सबट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा। इसके वेक्टर सम जो होगा वो 0 से लेके 4 के बीच में कोई भी वैल्यू रख सकता है।
ज़रूरी नहीं कि 0 आए, ज़रूरी नहीं कि 4 पे आए। यानी मिनिमम कितना होगा 0, मैक्सिमम कितना होगा 4, लेकिन इनको अगर ये दोनों वेक्टर्स हम ऐड किए जा रहे हैं तो 0 से लेके 4 के बीच बेटा कोई भी वैल्यू आ सकती है। देखो कैसे, सपोज दैट मैंने आपसे कहा एडिशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है वेक्टर्स का, इसीलिए क्योंकि वो उसमें डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है आपको। सपोज दैट यहाँ से आप 4 और 3, मान लो आप 4 मीटर गए, ए से बी पर गए बेटा आप, ठीक है, फिर बी से 3 मीटर और चले गए, कहाँ पहुँचे, सी पर। ना मैंने आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना हुआ, तो आप कहेंगे भाई 4 मीटर 3 मीटर, दोनों डायरेक्शन बिल्कुल क्या थी, सेम थी, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आया इसका कितना, 4 + 3 7 आ गया, ठीक। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा कि 4 मीटर ऐसे गए ए से बी तक, और फिर 3 मीटर इधर आ गए पीछे, सी पहुँचे, सी पे आया कितना 3 मीटर। अब मैंने आपसे पूछा बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप कहेंगे भाई 4 मीटर इधर तो पॉजिटिव लिया, और नेगेटिव आने पे क्या होगा -3, रिजल्ट कितना है 1 मीटर। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आया 1 मीटर। ज़रूरी है, देखो दो ही वही 4 और 3 है, इस समय 4 और 3 ऐड कर रहे हो तो 7 मिल रहा है, इस समय उस 4 भाई ये 4 - 3 का मतलब क्या है, ये ऐसे लिखा है ना 4 + -3, चूंकि डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था तो 4 को वेक्टर के साथ लिखोगे, 3 भी साइन के साथ लिखा जाएगा, है तो सिंपली एडिशन ही। यानी एक बार 4 3 को ऐड कर रहे हो तो 7 मिल रहा है, एक बार 4 और 3 को ऐड कर रहे हो तो क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। और देखो मैंने आपसे कहा आप एक बार 4 मीटर ऐसे गए, फिर 1 मीटर ऐसे गए। अब मैंने आपसे पूछा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप डिस्प्लेसमेंट सब कहानी बहुत कर चुके, हालांकि पिछले साल तक पूरा पढ़ाता था मैं, बट इस बार हटा दिया गया तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट वगैरह आपको। लेकिन आपको इतना पता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख दो, ये है आपकी इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन, ये है आपकी फाइनल पोजीशन, तो फाइनल से इनिशियल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो होगी। अब इसको कैसे निकालोगे, ये मान लो x है तो आप ये लिखोगे x² = 4 का स्क्वायर प्लस 3 मीटर था, इसी केस में लेना है 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 16 + 9 इट इज 25, x विल बी व्हाट 5। अब देखो 5 आ रहा है, मतलब कि 4 और 3 का ही एडिशन ही तो एक तरीके का है। 4 और 3 को वेक्टरली ऐड कर रहे हो तो एक बार 5 मिल रहा है, 4 और 3 को आप एक बार ऐड कर रहे हो वेक्टरली तो 1 मिल रहा है, 4 और 3 को एक बार ऐड कर रहे हो तो 7 मिल रहा है। मीन्स लोचा है, लोचा बहुत है। वेक्टर्स को ऐड करने में वैल्यू कुछ भी आ सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, ठीक है। इसलिए वेक्टर सम निकालने में हमको ये ध्यान रखना है कि हम कैसे ऐड करेंगे। देखो अब जैसे मान लो आपको 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर ए, अभी सिंपल वाला बता देना, डायरेक्टली देख के जो बता सकते हैं, फिर एनालिटिकल मेथड नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और एक ऐसा ले लो वेक्टर सी है। आपको इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे सोचो ज़रा। वी नीड टू ऐड दिस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। हम क्या करेंगे, हम इन वेक्टर्स को इनके पैरेलल मूव कराएंगे, और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर, इसको याद रखना बेटा, फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर हम या तो टेल प्लस हेड करते हैं, या ऐसे करो टेल टू टेल और हेड टू हेड, यही मिलाते हैं आप। एक वेक्टर का टेल अगले वेक्टर के टेल से मिलाएंगे, या वेक्टर का हेड अगले वेक्टर के हेड से मिलाएंगे। देखो जैसे ये दिया गया है, ये वेक्टर है, ऐसे ड्रॉ कर लो, टेल है या उल्टा बोल दिया मैंने ना, टेल हेड होता है। देखो एडिशन ऑफ वेक्टर टेल हेड ऐसे ही आपको मिलाना है, यानी एक वेक्टर की टेल को अगले वेक्टर के हेड से, फिर उसकी टेल को हेड से ऐसे मिलाना है। देखो वेक्टर ए ऐसे ड्रॉ कर लो, दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर ए। अब अगर इस वेक्टर बी को इसके पैरेलल मूव करके यहाँ तक ले आओ आप, या इसको यहाँ तक लेके चले जाओ, देखो ये हो जाएगा क्या, वेक्टर बी, and this vector can move parallel to itself over here. This is the vector C. Tail head ये ऐसा हो गया। अब अगर और सॉल्व करना चाहो तो पहले इसको ऐसे सॉल्व कर लो भाई, क्योंकि यहाँ टेल टू टेल मिल रहा है, पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। वेक्टर ए वेक्टर बी टेल हेड मिल गया, इसका कोई रिजल्टेंट मान लो ऐसा मिला। अब ये क्या आ रहा है, इसका टेल आ रहा है सी का, ये ऐसे कर लिया आपने, हेड टेल, यार क्या कर रहा हूँ ये। तो यू कैन ऐड बाय एनी अप्रोच,
याद कर रखना है, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड ऐसे ऐड करना है आपको, ऐड करते हुए चले जाएंगे। सपोज दैट ये वेक्टर P है, वेक्टर Q है, वेक्टर C है, वेक्टर D, आपको इनको ऐड करना है। रिजल्टेंट आपको पता करना है, व्हाट इज द रिजल्टेंट। ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ना, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब बेटा फिजिक्स में वेक्टर की दुनिया में जो आप ऐड करते हो ना, एडिशन के बाद जो मिलता है उसी को हम रिजल्टेंट बोलते हैं। रिजल्ट, फाइनल इफेक्ट क्या मिल रहा है उसका, ठीक है। अब जरा देखो मैंने क्या बताया था, टेल हेड इसको मिलाओ, देखो ये हो गया वेक्टर P का हेड, ये हो गया वेक्टर Q का टेल। इसको इसके पैरेलल मूव कर सकते हो वेक्टर C के, ये देखो वेक्टर C के पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ आ गए, ये हो गया वेक्टर C का टेल, ये हो गया वेक्टर C का हेड। अब D को इसके पैरेलल मूव करा के यहाँ तक लेके चले जाओ, दिस इज वेक्टर D, दिस इज द हेड ऑफ वेक्टर D। लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ लास्ट वेक्टर विल बी अटैच्ड। टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऐसे मिला दिया। पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से आपने क्या किया, मिला दिया। आपको यही रिजल्टेंट मिलना था, मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर देखना चाहो ना, देखो ये है मान लो 3 मीटर है, ये मान लो 3 मीटर, ये मान लो 2 है, ये 2 है। आपको ये निकालना है, देखो 3 और 3 तो टोटल ऐसे गए आप, ये 3 3 कितना हो गया बेटा 6, 2 और 2 ये कितना हो गया 4, नीचे दिख रहा है, थोड़ा सा कट जा रहा था, ऐसे देखो। अच्छा यहाँ तक इधर मिला देते हैं, 3 + 3 टोटल कितना गया आप 6, दिस 2 + 2 नीचे आ रहे हो यानी कितना 4, यही तो निकालना था ये। अब इसको आराम से पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। 6 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36, 4 का स्क्वायर कितना 16 √52, सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर बाय सिंपल। कैसे ग्राफ वगैरह दिया गया है, सिंपल आप देख के कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। बेसिक बातें याद रखना है। वेक्टर्स ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं विच हैज मैग्नीट्यूड, विच इज डायरेक्शन, प्लस दे आल्सो फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अदरवाइज दे आर नॉट कॉल्ड वेक्टर। स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दे डोंट हैव एनी डायरेक्शंस, ओके। Vectors are noted by a symbol of the physical quantity and there will be a arrowhead on the above of the physical quantity. Sometimes it is denoted by mod of vector. The mod of vector means simply magnitude of that vector. Then after the vectors are of many types: equal vector having same magnitude and same direction, opposite vector having same magnitude in opposite direction, collinear vector same line, coplanar means same plane. Most important is the unit vector. Unit vector is a vector having magnitude 1, and it simply denotes the direction of any vector. For x-axis the unit vector is fixed, that is always taken I cap. For y-axis it is fixed, it is taken always j cap. For z-axis again it is fixed, it is taken as k cap. Okay, so these are things which we discuss about it today. Especially the angle between two vectors is always theta greater than or equal to 0, less than or equal to 180. One thing. Second thing, whenever we need to find out the angle between two vectors, we either attach tail to tail or head to head. Then for the addition of the vectors, we always go for tail head tail head tail head tail head, okay, and the last vector will be given by the tail of the first vector and head of the last vector. We simply attach these two lines, okay. So that is how we do the vector addition. Although vector addition is very complicated thing, right now we are not I'm not discussing with the laws of vector addition. In the very next lecture, means tomorrow maybe, we will discuss about the laws of vector addition, which is very important. Triangle law of vector addition, how we add these physical quantities without any notation of, without any knowing of these basic concepts. Then we will discuss about the question and answer, and then we will go for the motion in plane, wave, projectile and all we will discuss, okay. So till then, take care and keep studying.